कल होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, थोड़ा डिफिकल्ट है। सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट, दो तरह का इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट इज ऑन द प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑन द अमाउंट। Am I audible to all of you? Please respond. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल इंटरेस्ट में हम पढ़ेंगे जनरल क्वेश्चंस, फंडामेंटल्स, फाइंडिंग प्रिंसिपल, देन डबलिंग ट्रिपलिंग क्वेश्चंस। फंडामेंटल कैसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला याद है आपको? PRT by 100. PRT by 100. PRT by 100. Yes, PRT by 100. What is P? What is R? What is T? Principal rate and Rate time. and time. Principal rate and time. Rate of interest time. Very good. Rate of interest per annum या per month क्या दिया जाता है? Per annum, sir, it's taken. Per annum. Time is in years, right? Yes, sir. तो ये पर annum है, ये years, year पर month होगा, ये per month में पूछेगा आपको। अगर months में दिया गया तो how to find? Sir, 5 divide by months. 12. We'll convert it to 5 by Yeah. 12 by years. अगर days में दिया गया 100 days. Divide by 365. Is it understood? Principal rate and time मल्टीप्लाई करके 100 में डिवाइड करेंगे तो आपको एसआई मिलेगा। एसआई के साथ प्रिंसिपल ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? total amount. Amount. अमाउंट, टोटल अमाउंट नहीं, अमाउंट। अमाउंट ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इजी क्वेश्चन है, सब कोई आंसर देना चाहिए, सब कोई पार्टिसिपेट करना चाहिए, कोई 30 देना चाहिए। आपका आंसर बहुत आसान है, लेकिन इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को। Let us start. First question. All of you need to mark the answer. Mark me the answer. देखते हैं कि लोग मार्क कर पाते हैं। Sir, 1500. You are supposed to write the answer, not in the mic. I was getting the number of respondents. Must be more than 50 or 40 students have responded. 5,000 into 3 by 100 is 1,500. All of your understanding, please respond in the mic. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You need not use pen and paper to solve this kind of question. You can do it on mind. What is 10% of 5,000? 500. 3 साल में कितना होगा? 1 साल में 500, 3 साल में कितना होगा? 1500. This is the way you can solve in your mind. PRT by 100 यहीं से आया है। 10% of 5,000 into 3. So those who know how to calculate percentage of number, they can get the answer easily. Should I proceed to the next question? All of you are ready to answer? Easy question. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please mark me the answer. Mark me, not everyone. कितना दिया है?
Only 10 students have solved. I'm giving you 30-second more. Time up. Answer is 100. 7th अगस्त में कितना दिन बाकी है बताओ? अगस्त में 7 अगस्त के बाद 24. 24. सितंबर में कितना दिन होता है? 30. 30. अक्टूबर 19 तक ऐड करें तो कितना दिन हो गया टोटल? 90. 73 days out of 365, right? So अप्लाई करेंगे तो आंसर इज 100. So कौन कौन लोग 100 आंसर दिया है? सुनीता आचार्य, स्नेहा सिंह, स्नेहल पद्दर, खुशबू, यश सिंह, अभिलाष, तपन दत्ता, थैंक यू वेरी मच, अलीशा महांती, Sir, as always, Avik Chatterjee. Yeah. sir, my was Look, 101. I am asking that why you are not taking 7th August in that 24 आज का टाइम, आज का डेट कितना है बताओ? 10th. 10th of जनवरी से 11th of जनवरी 2 दिन हो जाएगा क्या? No, I thought that we have to include 7. That's why. Yeah. Okay. You have included Okay, 19th, right? 19th have included. Any one of the day you have to include. Okay, sir. ठीक है? No issue. गलत हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं guys. You need to learn. You need to answer, all of you. गलत होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. Moving to the next question. Yeah, before that you must know 73 days is 1/5 year. अगर days में आता है usually 73 days दिया जाता है because it is 1/5 year. 146 days is 2/5 year. 219 is 3/5 year. 73 का multiple में usually answer आता है. यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ, थोड़ा याद रख लीजिए. अगर नहीं भी आता है 74 हो जाता है तो उसको 73 लेके सॉल्व कर देना. You'll get the same answer. ऑप्शन में होगा डेफिनेटली. 145 डेज आता है तो 146 ले जाना. 2/5 कल क्वेश्चन आसान रहेगा. Are you understanding what I'm saying? Yes, sir. 10% of 5,000 is 500. 1/5 of 500 is 100 rupees. This is the way you could have solved the question. No issue. Let's move to the next question. Please mark me the answer. Thanks very much. 30 answers are listed. All of you are giving correct answers. Very good. कोई एक जन गलत आंसर दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. 14 2/7% is
100/7 यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. इट विल टेक टाइम. ओके. और एल्स इफ यू नो 14/7% इज व्हाट फ्रैक्शन, टेल मी. फ्रैक्शन बताया गया था आपको क्लास में. 100/7. 1/7. फ्रैक्शन में 1/7. 100/7 परसेंटेज है. 1/7 अगर आपको याद है, 1/7 ऑफ 7,000 इज 1000 इन 1 ईयर. 4 साल में 4000. इज इट इजियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज रेस्पॉन्ड. जल्दी हो रहा है ऐसे? यस सर. अभिजीत आपका तो 28,000 हो गया. नहीं सर, वो गलत हो गया सर. श्रद्धा का भी 28,000 हो गया. अरे वाह. संबित प्राणिग्राही का भी 28. संबिता या संबित? संबिता और संबित क्या है? सर संबिता संबिता it's संबिता. संबिता. ओके. संबिता फर्स्ट टाइम में सुन रहा हूँ. संबिता पाणिग्राही. कोटी घर संबिता पाणिग्राही आपनकर? सर बारीपदा. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बी रेडी. और ये पहले आप मैं बता चुका हूँ. परसेंटेज याद रखना. परसेंटेज याद रखना जल्दी हो. ठीक है. हमने लर्न दिस फ्रैक्शंस. प्लीज राइट वाई इन द चैट बॉक्स. लेट मी सी कितने लोग को याद है फ्रैक्शंस 1/16 तक. अभी पूछूंगा मैं 3-4 बार इसको आपको याद कराया. लास्ट टाइम डीआई पढ़ाया तब वक्त भी मैंने ये पढ़ाया था. आपको याद है या नहीं है? हर जगह ये परसेंटेज जहां पर यूज है इसका काम आ गया. चलो नो इश्यू. रन कर लेना. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. जो लोग आज पहले बार अटेंड कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. 30 सेकंड टाइम. इजी क्वेश्चन आएगा. 30 सेकंड जल्दी लिखिए. डोंट टेल द आंसर द माइक. आंसर लिखिए चैट बॉक्स में. टाइम अप. 25 स्टूडेंट have answered. बहुत आसान है. 3 साल है आंसर. स्टॉप राइटिंग प्लीज. 5,000 is principal. 6% rate. टाइम इज x by 100. 900 इसको सॉल्व करें तो 3 years आएगा. और विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर और कैलकुलेटर. बहुत लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं. कैसे जल्दी कर पाएंगे? 5,000 का 6% कोई बता पाएगा जल्दी माइंड में? 900 होने के लिए कितना साल लगेगा? 300. This is the way you need to calculate in mind. As an MBA student, simple interest should be solved in mind without using pen paper. Am I right? Are you understanding? Please respond. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. यस सर. यस. ऐसा ही Yes, सॉल्व sir. करना है आपको. सारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का without using pen paper. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं मैं. Mark me the answer. Same approach. 30 second time. Easy.
चलो टाइम अप. 35 students have answered out of 94 students present in the class. बाकी 60 students क्या कर रहे हैं? Correct answer is 4%. 5,000 to x into 6 upon 100 is 1200. If you solve this, getting R is 4%. This is by using pen and paper by cancellation beginning. Or how can you get the answer in mind without using pen, paper or calculator? 1200 is the, yeah, बोलो. सर 1200 में 6 कर देंगे तो 200 निकल गया. Very good. या फिर 200 कितना है वो पता चल जाएगा. Very good. Sir, can you do it like this? 1200 by 50,000, 24, 24 by 6. Yeah. You can do that. Whatever is easy for you, whatever method you are comfortable at, you can apply that, right? Next question. ठीक तरह से ऑप्शन लिखिएगा. राइट ऑन द करेक्ट ऑप्शन. डोंट बी हरी. मार्क द करेक्ट ऑप्शन. टाइम अप. और कोई लिखना जरूरत नहीं. द करेक्ट आंसर इज सी. ऑप्शन सी. 1200 नीचे होगा. वाई 1200 नीचे होगा? कोई बता पाएगा? Sir, months 12 by months. 12. Months. 12 months. It will convert into year to A by 12. यस. थैंक यू वेरी मच. कुछ लोग, बहुत लोगों ने सी लिखा है. एडी भी बहुत लोगों ने लिखा है. तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ AMCAT. AMCAT में ये डेटा बैंक में आपका आंसर आ सकता है. इंटरेस्ट A डिवाइडेड 1200 AQ by 1200 अमाउंट होगा प्लस A टेकिंग कॉमन इट विल बी 1 plus A square by 1200. ऑप्शन सी इज द आंसर. इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है. जल्दबाजी में गलत मत कीजिएगा क्वेश्चन. Sir, 12 क्यों डिवाइड हुआ सर? मंथ्स दिया गया. टाइम मंथ्स में दिया गया. A months, it should be A year. A months is equal to A by 12 year. All of you understanding, please respond with the mic, yes or no. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. सर यहाँ पे अगर इंटरेस्ट भी मंथ में दे देता तो कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ता. Yes. Should I move to the next question? Yes, sir. This is easy. Mark the answer.
Time is up. 40 students have answered. Thank you very much. All of you are doing correct answer except few. इसको जनरल मेथड में करेंगे तो p into 3 to by 5 500 is equal to 450. p होगा 3000. ऐसा ना करके मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ. प्रिंसिपल को 100% लेना है. As I told you in the class percentage class. बेस जो है उसको 100 लेना चाहिए. और इंटरेस्ट होगा RT%. RT% मतलब एक साल में 5%, 3 साल में होगा 15%. अमाउंट होगा 115%. इसको याद रखें. कौन सा अमाउंट दिया गया है? इंटरेस्ट दिया गया है, which is 15%. 15% is this. What is 100%? This is the way you need to calculate. मैंने पढ़ाया था what percentage equal what actual number 100% और required percent क्या है percentage में. I told you this method is very very important. We will be able to solve questions on SI, CI, profit and loss in seconds by this method. Is it understood guys? Please respond. किसको 100 लेना चाहिए? माइक बोलिए. माइक में प्रिंसिपल ओके. इंटरेस्ट क्या होगा? R into T, राइट? RT%. अमाउंट होगा 100 प्लस RT. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. मार्क में आंसर. यस सिंह क्लोज बट नॉट करेक्ट. आंसर चेक कर लीजिए. शिवम प्रधान और आंसर चेक कर लीजिए. गलत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड अभिजीत बेउरा, आपका आंसर पूरा गलत है. अनिर्बान पॉल चेक आंसर 1 सेकंड. त्रिशिता महापात्र चेक आंसर 1 सेकंड. शांतनु मिश्रा चेक आंसर 1 सेकंड. ये जो 6400 या 6000 क्या दिया गया है? व्हाट इज दैट? अमाउंट या प्रिंसिपल? अमाउंट है. बहुत लोगों ने इसको प्रिंसिपल लेके सॉल्व कर दिया. भाई क्या दिया गया? 7200 कर दिया. A certain sum amounts to 6000 and for it. What is that sum? Principal पूछा गया. If we solve it with the general method, principal is P plus P into 5 into 4 upon 100 is given as 6000 into solve for P. This is general method. जो कि बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमारा मेथड में आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं. प्रिंसिपल को 100% लेते हैं. आई टोल्ड यू amount is equal to 100 plus RT. R is equal to 5, T is equal to 4. So 5 4s are 20. 120% is given as 6000. 100% is equal to 5000. This is the concept. I repeat, 120% is equal to 6000. 100% is equal to 5000. How many for understanding? Please write Y. तभी से कितने लोग सुन रहे हैं मेरे को? There are 95 students present. How many are listening to me or how many are sleeping now? Login करके सो गए बहुत सारे लोग. सर मेरे को अमाउंट प्रिंसिपल की तरह दिखा, इसीलिए मेरा गलत हो गया. हाँ आई अंडरस्टैंड. तो ऐसे एग्जाम में भी दिखेगा, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है. भाई ठीक तरह से देखो, धीरज रख के सॉल्व करो. रीड द क्वेश्चन केयरफुली, सिंसियरली. आप अच्छे करते हो, लेकिन क्या होगा? गलत हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं हम डबलिंग ट्रिपलिंग क्वेश्चन. डबलिंग ट्रिपलिंग क्वेश्चन ऑन SIC. वही डबलिंग ट्रिपलिंग क्वेश्चन CI में भी आएगा, लेकिन पहले SI वाला पढ़ लेते हैं. डबल होता है इतना साल में तो कितना रेट परसेंट है? कितना टाइम में डबल होगा? इस तरह क्वेश्चन. दिस इज टाइप 1, दिस इज टाइप 2. बहुत सारा क्वेश्चन होता है. टाइप 1 पहले पढ़ते हैं.
Please solve this question in general method and mark me. बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. Solve in your mind. आंख बंद करके कोई 12.5 लिख दिया. कौन है भाई तुम? शायद प्रीवियस क्लास में था तुम, अभिजीत स्वाई. सर इसके पहले वाला क्वेश्चन 8 इयर्स का, तो मेरे को ओह सॉरी आई एम सॉरी. सॉल्व दिस क्वेश्चन. Only 10 students have sent me the answer. What about the rest of the students? Easy question. All of you need to solve this. 95 students present in the class. Are you solving or should I tell you the answer? चलो टाइम अप. Let me solve a question. Principal x amount हो जाएगा 2x. Is it understood, guys? Yes, sir. What is the interest? Can anyone tell me interest क्या होगा? नया मुखर्जी आपका आंसर सही था. X. X. X into 10 into r by 100 is equal to x. x cancel हो जाएगा. 10r is equal to 100. r is equal to 10. x cancel करके r is equal to 10%. सर ये डायरेक्टली 100% बाय नंबर ऑफ इयर्स कर सकता है ना? यस कर सकते हैं हम. सेकंड में दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. हम जाएंगे शॉर्टकट में जाएंगे. 10 इयर्स में डबल होता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? किसको 100 लेते हैं बताओ? प्रिंसिपल को क्या लेते हैं बताओ? प्रिंसिपल को कितना परसेंट लेते हैं? 100%. 100%. डबल होगा मतलब अमाउंट कितना होगा? 100%. अमाउंट कितना होगा? 200. अमाउंट विल बी 200. तो व्हाट इज द इंटरेस्ट? 100. उसमें टाइम को डिवाइड कर दीजिए, आपको रेट मिल जाएगा. दिस इज द कांसेप्ट. Then solve in your mind. 100 becomes 200. Difference is 100. 100 by 10 is 10%. Can save time. Simple interest में होता है. Compound interest में same question answer will be different. जो कि हम कल पढ़ेंगे 2:30 में. So don't miss the class. Compound interest will be taught tomorrow. DI आपका बेसिक्स कराया गया है, फिर DI एडवांस भी कराया जाएगा आपको. बीच बीच में DI चलता रहेगा. जो मैं DI क्वेश्चन बना दूंगा, फिर मैं आपको टेस्ट दूंगा, क्वेश्चन पढ़ाऊंगा. Concept वही है, परसेंटेज रेशियो. Is it understood? Should I move to the next question? Yes, sir. Yes, sir. All of you should send me the answer correctly. Mark me the answer. बहुत आसान क्वेश्चन है. Sixteen आंसर I've received so far. इतना देर क्यों लग रहा है? मैं तो आपको शॉर्टकट बता दिया. चलो टाइम इज अप. लेट मी एक्सप्लेन दिस. बहुत लोगों को
सॉल्व नहीं हो पा रहा है. ओनली 40 स्टूडेंट्स आर सॉल्विंग, 50 स्टूडेंट्स आर नॉट, और सॉल्व करके आंसर नहीं भेज रहे हैं. कैन यू सॉल्व इट योर माइंड? सर नेहा मुखर्जी गलत हो गया आपका आंसर. आशीष का गलत हो गया. 30 साल लिख दिया. आपका आंसर होगा 20 years. 100 will become what? Tell me. माइक में जल्दी बताइए. 100 will become जनरल मेथड बोलते हैं. 300. 300. In total interest will be 200. will be 200. Interest will be 200. Divide. 200 divided 10. 200 divided by 10. यहाँ पर 300 नहीं, 200 है. 200 divided by 10 is answer. Principal 100, amount हो जाएगा 300. Interest is 200. 200 divided by 10. Can't you do it in your mind or need to draw the line? ये माइंड में हो पाएगा? हाँ सर, हो जाएगा. Yeah. This is type 1 question. Let's move to type 2. Read the question carefully and mark the answer. I'm giving you 1 minute time. Mark me. Only 5 students have solved. I'm giving you 30 seconds more. Tushita, please check your answer once again. Not correct. Thank you for trying. Sunita Acharya, please check your answer once again. Aditi Badani, please check your answer once again. Rest of the students are doing correct. Thank you. Tapan Datta, please check your answer once again. Aishwarya ने सही आंसर दिया है. Nitika is also doing correct answers. Abhijit is doing correct answer. Aishwarya is doing correct answer. बहुत लोग आंसर कर दिए हैं. सुधांशु has given correct answer. Piyali has given correct answer. Yes has given correct answer. Tathagata has given correct answer. Anisha Mahant has given correct answer. बहुत लोग दिए और भी है, मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ. आशीष, अभिलाष, अभिजीत. जनरल मेथड करेंगे तो x becomes 2x, डिफरेंस will become x, रेट मिलेगा, रेट को अप्लाई करेंगे, फिर आपको टाइम मिलेगा. नहीं चाहिए शॉर्टकट में करेंगे. 100 become 12, 200. डिफरेंस कितना बताओ? 100 depends in 8 years. 8. Divide 12.5. 12.5. 100 will become 400. डिफरेंस कितना बताओ? 300 divided by 2.5. 300 divided by 12.5, 24. How many have done by this method? Please respond to me in the mic. कैसे किए थे आप? Me, sir. Aishwarya. इससे भी इजी हो सकता है. देखो कैसे. 100 become 200. डिफरेंस कितना बताओ? डिफरेंस कितना जल्दी बताओ? 100, sir. 100. 100 will become 300 or 400. Difference कितना बताओ? 300. 300, sir. How many times of 100 is that? 3. 3 times. 3 times of 8 is the answer. जितना इंटरेस्ट गुना होगा टाइम उतना गुना चाहिए. इंटरेस्ट जितना गुना प्रिंसिपल का या पहला इंटरेस्ट का टाइम उतना होना चाहिए. Is it better? Please respond to the mic. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर ये बेटर है. How many understanding? Please write y in the chat box. Write y and solve this question. अगर same question, give me the answer. Come on. इतना कहने के बाद भी आप देर करें आंसर. Only 10 students have answered me so far.
15 students have answered. 20 students have answered. 10 seconds left. That's it. Chalo, time is up. Let's see how to solve this question in less time. All of you are giving correct answers. Thank you very much, except few. प्रवीण कुमार, नवीन कुमार आपका आंसर गलत हो गया. अभिजीत सरन आपका आंसर गलत हो गया. बाकी सही आंसर. आश्चर्य इप्सिता आपका आंसर गलत हो गया. ये है नेहा मुखर्जी आपका आंसर गलत हो गया. बाकी सब सही आंसर दे रहे हैं. ये नाम है उनका भास्कर जी, आपका सही आंसर होता है. आज क्या गलत हो गया? आशीष भाई का भी गलत हो गया. 100 will come to how many times? Tell me. 300. 100 क्या हुआ? 300. डिफरेंस क्या है? 200. 100. आपको पूछा गया 900 होगा. How many times it is? 8. 4 times. 8 times. How many? 4 times of 12 is 48. Yes, sir. Understood. All of you understanding? Give me a big yes in the mic. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Go to the Google Classroom. I'll give the test now. Whatever I've taught, I'll give the test. 10 question time will be 10 minutes only because questions are very easy. देखता हूँ कि आराम से क्लिक करिएगा. आप सॉल्व कर देखेंगे. क्वेश्चंस अच्छी तरह से पढ़ के सॉल्व करेंगे. Go to your Google Classroom. Let me. That's it. I have stopped taking responses now. Guys, how were the questions easy, medium, tough? Sir, only except 2, sir. Rest are easy. Okay. Sir, between medium and tough. Medium. Okay, fine. Roll number 243 is he present? 243. Yes, scored 30 out of 30. Roll number Yes, sir. 214 has scored 30 out of 30. Are you getting your score after taking the test? Yes, sir. Yes, sir. चलो, जो 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट बता रहे हो उसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ. जो तीन क्वेश्चन डिफिकल्ट था. बस उतना ही तो है. बाकी तो सब पढ़ाया था मैंने. Isn't it? Yes. Is my screen visible, all of you? This is one of the question. A man deposits some in a bank 8.5% per annum for 2 years at invest. Is it the question? Yes, sir. अगर आप उसको जनरल मेथड में करोगे तो बहुत टाइम लगेगा. सपोज मैं उसको x रुपीज में डिपॉजिट कर रहा हूँ. पोस्ट ऑफिस में मेरे को मिला 10%. 2 साल में मेरा इंटरेस्ट इतना होगा. बैंक में मिलेगा 8.5%. 2 साल में मेरा इंटरेस्ट इतना होगा. द डिफरेंस इज 300. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अगर जनरल मेथड में करोगे तो व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज बहुत टाइम लगेगा. वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन आवर मेथड इन सेकंड्स. कैसे? 10% and 8.5%. Minus 8.5. हाँ, वही. What is the difference? Tell me. 1.5. 2 साल में डिफरेंस कितना होगा? 3%. 3% 300 है. 100% 10,000 है. That's it. नहीं, वो करना है. वही कंसेप्ट जो पढ़ाया गया था. Is it understood? Please respond. Yes, sir. Yes, sir. जनरल मेथड है. ये चाहिए हमको 3% 300 100% होगा 10,000. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन. इज इट? Sir, can I go back to the previous slide? Yes, sir. This one. प्रीवियस Yes. स्लाइड. Sir, ma'am. अगर आप समझेंगे क्वेश्चन 5,400 2 साल का इंटरेस्ट है. 2 साल का अमाउंट है. 5,700 इज 3.5 इयर्स का अमाउंट है. डिफरेंस निकालेंगे. दैट इज 300. दैट इज 300 क्या होगा बताओ? व्हाट इज दिस 300? 8 साल का इंटरेस्ट सर. इंटरेस्ट आएगा 1.5 ईयर का. एग्जैक्टली 1.5 इयर्स का इंटरेस्ट आएगा 300. तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा?
400. 1.5 के सही है। It's एग्जैक्टली 1.5 पे है, 3.5 साल और 2 साल का डिफरेंस है 1.5। 1.5 ईयर्स में 300, 2 साल में होगा 400 रुपया, तो 400 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको 5000 मिल जाएगा, दैट इज द प्रिंसिपल। to find the sum. फाइंड द सम मतलब प्रिंसिपल क्या है, सम Okay. मतलब प्रिंसिपल, सर्टेन सम Okay, अमाउंट्स टू प्रिंसिपल। इज इट अंडरस्टूड? प्लीज रेस्पॉन्ड। Yes. Yes, sir. Yes, sir. उसी क्वेश्चन में पूछा गया रेट पर्सन क्या है, आफ्टर फाइंडिंग द प्रिंसिपल 400 रुपया, 2 साल में इंटरेस्ट है, 1 साल में 200 है, दैट इज 4%। वाज देयर ए क्वेश्चन? 4% क्या होगा? No, sir. 2 questions were same actually. ना उसमें No. सम The एक में difference सम, है ना, एक में परसेंटेज है। हाँ, एक में परसेंटेज पूछा गया, इसमें सम पूछा सर गया, ये इसमें 200 कहाँ से निकल गए? 200 इज 400, 2 साल में, 1 साल में 200 होगा ना। हाँ गोटे वर्ष दिस, हाँ ये सर 1 साल में 200। Is it clear, guys? Understood or not? Yes, This sir. is one of the question. 5,000 is lent to A and B at 10%, 15%. If the interest is from both of them is 18 and 3 years, what is the sum lent to B? यही था क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. सपोज A को X रुपया दिया जाएगा, B को दिया जाएगा 5,000 माइनस X। X के ऊपर 10%, 5,000 X minus equal 15% is equal to 1,800. To solve this, we'll be getting the value of X. From that, 5,000 minus X. Read the solution. इतना लंबा नहीं चाहिए हमको, बहुत लंबा है। इसको हम सॉल्व करेंगे एलिगेशन मिक्सचर में। एलिगेशन में एक पढ़ाया जाएगा आपको, एक जन को 10% में दिया जा रहा है, एक जन को 15% में दिया जा रहा है। नेट जो रिटर्न है वो 12% है। डिफरेंस निकालेंगे तो 3:2 होगा, दैट इज 3,000, 2,000। समझिए ठीक तरह समझो। 12 कैसे है? कितने लोग को 12 समझ में आ रहा है? ऊपर लिखा है 12। 12 कितने लोग को समझ में आ रहा है? Why 12? Yes, sir. 800 800 for 1 year. 5,000। 600 in 1 year. ये यहाँ पर 1800 है 3 साल में, 1 साल में इंटरेस्ट होगा 600। 600 5,000 कितना परसेंट? नेट रिटर्न क्या है? और मैं ROI जो बोलते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? ROI is 12%, that you need to write in the middle. ये आपको पढ़ाया जाएगा, टॉपिक है एलिगेशन मिक्सचर का टॉपिक है, आपको मैं पढ़ाऊंगा। This is understood. Can I move to the? ये तो खत्म हो गया, इतना ही तो क्वेश्चन है, और तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए आई थिंक। सर आपके यहाँ पर जब स्कोर दिखाता है ना, निकालने के बाद कैसे आया फिर ये 3? 3,000 5,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे, 3/5 2/5 हमारा 15% वाला पूछा गया। सर आपके यहाँ पर जब स्कोर दिखाता है ना, तो कौन सा वाला गलत हुआ है वो नहीं दिखाता है, सिर्फ स्कोर दिखाता है। नहीं गलत हुआ दिखाएगा ना, नहीं दिखाता है सर। Correct answer दिखाता है, दिखाता है। correct answer जो गलत होता है उसका करेक्ट आंसर दिखाता है। जो गलत होता है उसका करंट आंसर नीचे लिखा जाता है, जो रॉन्ग सही होता है ग्रीन कलर में उसको नहीं दिखाता। सर हाँ जी सर, ये जो आप हर क्वेश्चन को जो मैंडेटरी हो जाता है ना, उसको क्वेश्चन को स्किप करने में प्रॉब्लम होता है। नहीं अब क्वेश्चन तो, आर यू गेटिंग 1 क्वेश्चन पर पेज? नो सर, मैं बोल रहा हूँ कि जो हम क्वेश्चन स्किप करने जाते नहीं आता है, उसके वजह से एक लगाने से एक माइनस हो जाता है। Can't you solve question number 1 and then question number 3?
2 को बाद में करके करने नहीं सकते आप? नो सर, वो सर जो वो होगा कर ना, सकते हैं वो सर, लेकिन सर एक हाँ। अगर क्वेश्चन स्किप करते हैं तो सबमिट नहीं होता, तो इसलिए सर हमारा मैं नेगेटिव। वही बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है, तो ये तो क्वेश्चन कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, आंसरेबल तो नहीं है। द ट्रिक इज कि आपको जो सॉल्व होता है कर लीजिए, जो नहीं सॉल्व होता है छोड़ दीजिए, उसको बाद में करेंगे लास्ट में। जो सॉल्व करे या ना करे उस विल बी वेरी नेगेटिव मार्क, 1 - 1 मार्क। इस तरह का सोचो, आपको नहीं आता है -1 मार्क। 15 मिनट मैंने टाइम दिया, 16 मिनट टाइम दिया। ये इतना इजी क्वेश्चन कर, इसमें 4 क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन और 6 क्वेश्चन तो आराम से 2-2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। Am I right or not? Please speak to me. Yes. तो मैं 4 क्वेश्चन अगर लेंदी देता हूं तो उसमें you can make your video on and have a word chat with me. If I'm giving 4 questions lengthy, then 6 questions are also easy, right? तो 6 क्वेश्चन को I'm expecting you to solve question in a 2 to 3 minutes time. बाकी 10 मिनट आप 4 क्वेश्चन में लीजिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ अभिजीत बेवरा? Yes, sir. सर मैं ये चलो। नहीं कह रहा था, मतलब जो क्वेश्चन कभी जो नहीं आता है उसको skip नहीं कर पाते हैं, ये नहीं, स्किप अब आप लास्ट में सॉल्व करना। स्किप मतलब you have to solve at the end. You do not have to solve immediately, you have to solve at the end. जो अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए, 3 नहीं आता है तो 4 कीजिए। जो 2-3 बच गया है उसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, टाइम होगा, नहीं तो ब्लॉक मारेंगे और क्या करेंगे। मैं कंपलसरी इसलिए किया हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। यू शुड नो द स्ट्रेटेजी। उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में जाइए, 3 नहीं हुआ 4 में जाइए, बाकी सब 3 ठो